our focus for the entire month of August is foundational doctrines. और इस महीने भर में हम आधारभूत सिद्धांत के विषय में हम कई बातों को हम सीखेंगे. And today we're going to talk about God, our belief on God. और इस सुबह के समय हम परमेश्वर के बारे में, यहाँ हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, इस विषय पर हम कई बातों को सीखने जा It's रहे very हैं. important as a church, LifeBridge, that we have clarity and clear understanding on what we believe about our God. और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कलीसिया के तौर पर हम ये सीखें कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत जरूरी है. It's very important because there are so many false doctrines that are floating around the world today. हमें सही सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास कई प्रकार के झूठी शिक्षाओं को लोग सिखा भी रहे हैं. And when we also have correct theology or correct doctrine, it helps us to live a morally upright life according to our belief about God and our faith. लेकिन अगर हम सही सिद्धांत को अगर हम जानते हैं और अगर हम सीखते हैं तो नैतिक रूप पर भी परमेश्वर हमें सहायता करेगा कि हम एक अच्छा एक मसीह जीवन को हम बिताए. If you don't know what you believe, you will not be able to articulate that faith with others either. अगर आपको नहीं जानते कि आपको किस पर विश्वास करना है तो ये आपके लिए मुश्किल होगा आगे के समय में. So doctrine is very important. इसलिए सिद्धांत बहुत जरूरी है. And what is doctrine? सिद्धांत क्या है? It is a set of accepted beliefs held by a community of people. सिद्धांत सरल शब्द में विशेष समूह द्वारा धारण किए गए विश्वासों का एक समूह है. Within the Christian faith, there are so many different doctrines. मसीह समाज में कई प्रकार के सिद्धांत हैं. And in spite of the differences in the doctrines, we want to hold on to what unifies us as a people of God together within the body of Christ. चाहे सिद्धांतों में अलगाव क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम यीशु मसीह में हम एक रहे. But at the same time, we need to know what the Catholic Church believe, what the Baptist Church believe, what the Methodist Church believe, or what the Pentecostal Church believe. These different Anglicans, Methodists, there are so many denominations. लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पता होना बहुत जरूरी है कि कैथोलिक सभा या प्रोटेस्टेंट जो सभा है या मेथोडिस्ट जो चर्च है या बैप्टिस्ट जो कलीसिया है, उनके क्या शिक्षाएं हैं, उनका क्या सिद्धांत भी है करके. So what is it that as LifeBridge we understand about our God and our faith? ऐसा क्या है कि लाइफ ब्रिज कलीसिया में सुबह के समय हम परमेश्वर के बारे में हम क्या जान सकते हैं? And when we understand and know these doctrines, we will embrace them in our lives. और हम जब इन सही सिद्धांतों को हम जब सीखते हैं तो उसे हम ग्रहण भी हम कर सकते हैं. As you have walked into the church today, you may have received a statement of our faith that has been distributed. जैसे आप इस भवन के अंदर आप आए थे तो आपके पास एक पेज एक डॉक्यूमेंट दिया गया था. उन बातों की ओर भी हम ध्यान देंगे. If you haven't received it, please do collect it before you leave the church. अगर आपके पास अभी तक मिला नहीं है तो कृपया आप हमसे जरूर इस पेज को आप जरूर It's a लें. summary of our overall faith and our belief. ये जो बातें हैं वो हमारे विश्वास के एक सारांश रूप में लिखा गया है. So based on those facts, those beliefs, we will be elaborating our teaching during this month of August. और इन विश्वासों को बहुत ही विस्तार रूप में इस महीने भर हम जरूर सीखेंगे भी. By next Sunday, the Lord willing, we will give you a copy in Hindi as well. और अगर परमेश्वर के आगमन में देरी है तो अगले संडे हम जरूर इसको हम हिंदी में भी हम देंगे. When we look at the scripture, we see that the doctrine help us to be good ministers of the gospel. और हम जब परमेश्वर के वचन में हम जब देखते हैं तो सिद्धांत एक अच्छा एक सेवक को बनाने के लिए भी कायम करता We है. are all servants of God.
हम सब परमेश्वर के दास लोग And we हैं। are able to minister effectively when we know what we believe. और इसके जरिए हम बहुत ही प्रभावशाली होते हैं सेवकाई में, हम जब सही सिद्धांतों को हम जब सीखते हैं, So that we can hold on to what we believe. ताकि हम उसको हम पकड़ के हम रखें जिस पर हमने विश्वास So किया that you है। can pass that on to your generations, your children and your children's children. जो बातों को हमने सीखा है उन बातों को हम अपने आगे की पीढ़ियों को भी हम क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, दे सकते And हैं। as I mentioned before, to avoid mixing up the wrong doctrines and the teachings that we are bombarded with on the social media, on YouTubes and various other churches today that brings a lot of false doctrines. मैं इस प्रकार की भी कहना चाहूंगा कि हमें ये सीखना जरूरी है कि सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि हमारे आसपास और सोशल मीडिया में ऐसे कई गलत शिक्षाओं को, गलत बातों को जो बाइबल के जो विरुद्ध है उससे भी लोगों को सिखा रहे हैं। Whatever we believe about our faith, our doctrines must be based on the word of God. चाहे कुछ भी हम सीखते हैं वो याद रखना कि परमेश्वर के वचन के आधार के हिसाब से ही हमें सीखने की जरूरत है। This is our final authority. ये ही परमेश्वर का वचन ही हमारा अधिकार है। If the Bible does not teach, we do not believe that. अगर बाइबल नहीं सिखाते हैं तो हम भी नहीं, उससे हम ग्रहण नहीं करेंगे। And so it's very important for us to read the Bible and study the Bible. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाइबल को पढ़े और वचन को हम सीखें। How many of you are so glad that God has chosen to reveal himself to us? हम में से कितने लोग ये हम में से कितने लोग आशीषित को प्राप्त कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम उसके प्रकाश को हम अनुभव करें। God, our God, the God of the Bible is a God who reveals himself or makes himself known to us. परमेश्वर जो बाइबल में हम देखते हुए ऐसे एक परमेश्वर हैं जो हम अपने आप को हमारे सामने व्यक्त करता है। He has made himself known to us through his son Jesus Christ. परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह के जरिए अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया He है। has made himself known to us through this holy word. परमेश्वर ने इस वचन के जरिए हमारे सामने अपने आप को प्रकट किया है। He has made himself known to us through those revelations that we have received from God. परमेश्वर के उस प्रकाश के जरिए अपने आप को परमेश्वर ने हमारे सामने प्रकट किया है। So who is God? तो परमेश्वर कौन है? But let me tell you that God is not a concept or some kind of an ideology. मैं कहना चाहूंगा कि परमेश्वर कोई अवधारण नहीं है या कोई विचार नहीं है। It's not some philosophical thought. ये कोई तात्विक कोई सोच नहीं है परमेश्वर के बारे में। Right from the first book of the Bible, पहले पुस्तक उत्पत्ति से ही God is spoken of in concrete terms as having power, personality and character. परमेश्वर के बारे में बहुत ही ठोस शब्दों में विवरण किया गया है, जिसके पास शक्ति है, अपने एक व्यक्तित्व है और अपना एक चरित्र भी है। He is not an impersonal force or an entity. वो कोई वस्तु या कोई व्यक्तिहीन परमेश्वर नहीं है। God has a spirit. परमेश्वर की एक आत्मा है। He has will. उसका एक इच्छा है। He has intelligence. बुद्धि है। He has ability. क्षमता है। He has a voice. अपना एक आवाज भी है परमेश्वर का। God is called he, not it. परमेश्वर का वचन में वह कहा गया है, यह नहीं कहा गया है। And whenever we write God as he, we use the H as a capital H. और हम जब कभी भी परमेश्वर को वह लिखते हैं तो उसे हम बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में हम लिखते हैं। And when we write God, the God of the Bible, we do not write G, a small letter. We always write G, a capital letter. और जब कभी भी हम परमेश्वर शब्द को भी हम जब लिखते हैं तो हम कोशिश करते कि उसे हम बड़े अक्षरों में हम लिखें। So he has attributes of living personhood. और ऐसे एक परमेश्वर जिसको जीवित व्यक्तित्व के सभी गुण इस परमेश्वर में है। Genesis chapter 1 verse 1 to 5. उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 उसका 1 से 5। We can read that in Hindi. मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारा से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाला को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। From this very first few verses of the Bible itself, we get the character and the attribute and the personhood of God. इसी पहले 5 वचनों से ही हमें पता चलता है कि परमेश्वर का व्यक्तित्व के बारे में बहुत ही गहराई में वर्णन किया गया है। But it is important to know that foundational to our understanding of God is that He is one, and at the same time God is three. इसके साथ ही साथ हमें यह भी जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर एक है और साथ ही साथ परमेश्वर त्रिएकता भी है। We will explain that to you. इसके बारे में हम बहुत और सीखेंगे। God is a single living essence. परमेश्वर एक जीवित सार है। He is a perfect unity. वो एक परिपूर्ण एकता में है। But He exists in 3 different persons. फिर भी परमेश्वर 3 है। And the Bible teaches us that He manifests Himself as the Father, as the Son, and as the Holy और Spirit. बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है करके। So the first point about God is that He is one essence. तो मैं आपके सामने पहला बिंदु में रखना चाहूंगा कि परमेश्वर एक सार है। The words that we have read demonstrate to us that He is one God. और इन वचनों के जरिए हमें यह भी पता चलता है कि परमेश्वर एक है। He is prescribed or presented as a singular, all-powerful being who has the power to bring all creation into existence. इन वचनों के जरिए हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक वचन है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और सभी सृष्टि को अस्तित्व में लाने की शक्ति भी परमेश्वर में है। God is not dualistic. परमेश्वर द्वैतवादी परमेश्वर नहीं है। There is not a God of good, there is not a God of evil. परमेश्वर अच्छा का परमेश्वर या बुराई का परमेश्वर नहीं है। And God is not polytheistic. और परमेश्वर बहुदेववादी परमेश्वर नहीं है। In other words, there is not many gods. सरल शब्दों में अनेक परमेश्वर नहीं है जिसकी हम आराधना कर रहे हैं। There is not a God of the day and there is not a God of the night. ऐसा नहीं कि दिन का परमेश्वर, रात का अलग परमेश्वर। There is a God of the rocks, there is a God of the water. वो चट्टानों का परमेश्वर, पानी का परमेश्वर। Or there is no such thing as God of the trees. और या पेड़ों का परमेश्वर नहीं है। Or God of the earth or God of the sky. या धरती का परमेश्वर नहीं है। There is one God who is Lord over all, who created all things. लेकिन कहना चाहूंगा कि एक ही एक परमेश्वर है जो प्रभुता करता है और उसका नाम है पिता परमेश्वर। Deuteronomy chapter 6 verse 4. व्यवस्था विवरण अध्याय 6 उसका 4। This is the central tenet of the Christian faith. और ये जो वचन है हम आपके सामने हम पढ़ना चाहेंगे। 6 का 4 हम पढ़ेंगे। इस प्रकार लिखा है, इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। Hallelujah. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. And so it's very important for us, especially those of us who live in a country where there are 3 billion gods and goddesses. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, विशेष तौर से इस देश में जहां करोड़ों देवी देवताएं हैं। Very important for us to have this revelation that there is only one God. ये प्रकाश को आप प्राप्त कर ले और ये जान ले कि एक ही एक परमेश्वर है। But I told you that He has 3 personality or expressions. लेकिन मैंने आपके सामने ये भी कहा कि उसके 3 व्यक्तित्व है। Very early in the book of Genesis, और उत्पत्ति के पुस्तक में ही
we see that plurality demonstrated in Genesis chapter 1 verse 1. परमेश्वर के बहुवचन के उस व्यक्तित्व को उत्पत्ति के अध्याय 1 में भी हम देख सकते We हैं. read there that God has a spirit and he moves and acts by the spirit. और हम वहां देखते हैं कि परमेश्वर का एक आत्मा है जो चलती है और कार्य भी करता है. As you read later in that same book, you find that God is spoken of as a third person pronoun, as us. और आगे की अध्याय में अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं कि परमेश्वर तीसरे व्यक्ति बहुवचन में उसे वहां सर्वनाम के रूप में वहां प्रयोग किया गया है. Turn your Bible to Genesis chapter 1 verse 26 and 27. उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 उसका 26 और 27 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा. Very important to understand this. ये बहुत महत्वपूर्ण है. फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जनजातुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे. So God said, let us make mankind in our image. तो परमेश्वर कहते कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए. So God is saying us, plural, और परमेश्वर कहता कि हम जो सर्वनाम है and our likeness, plural. और हमारी अपनी समानता में फिर वहां बहुवचन का उपयोग किया गया है. Also in Genesis chapter 1, और फिर उत्पत्ति अध्याय 1 में the world is created from God's words as he speaks. और जो पृथ्वी और आकाश की जो रचना है परमेश्वर के शब्दों के जरिए बनाया गया था. In the New Testament, in the Gospel of John, और यूहन्ना के सुसमाचार में नए नियम में it begins very similar to that which we read in Genesis. और लगभग जो शब्द जो उपयोग किया है लगभग एक ही है, एक ही भाषा हम देख सकते हैं. John chapter 1 verse 1 to 5 यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1 उसका 1 से 5 and verse 14. और उसका वचन 14 इस प्रकार मैं पढ़ना चाहूंगा. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था. यही आदि में परमेश्वर के साथ था. सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई. उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था. ज्योति अंधकार में चमकते हैं और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया. वचन 14 और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा. So here we see the Son that we talked about, the plurality of Godhead. Jesus Christ is described as the living word. और यहाँ हमने परमेश्वर को बहुवचन के रूप में देखा है और यहाँ यूहन्ना अध्याय 1 में परमेश्वर को वचन करके संबोधित किया गया है. Who was with God at the foundation of the world. जो परमेश्वर जो इस सृष्टि के नींव के उस समय से ही था. And he was God. और वो परमेश्वर था. So Jesus is co-equal, co-eternal person within the essence of God. तो इसीलिए परमेश्वर सह बराबर है, परमेश्वर तुल्य है, परमेश्वर सह सनातन परमेश्वर है. So this revelation of God as one but three, तो इसीलिए नए नियम में परमेश्वर के जो प्रकाशन है जो 3 में कहा गया है, creator, सृष्टिकर्ता, savior, उद्धारकर्ता and the word, और वचन के रूप में is referred to in the many New Testament passages. और ऐसे इन 3 बातों को कई अध्यायों में नए नियम में हम देख सकते हैं. Matthew chapter 28 verse 19. मत्ती अध्याय 28 उसका 19 इस प्रकार लिखा है और It says, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father
and of the Son and of the Holy Spirit. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. And then in this benediction in 2 Corinthians chapter 13 verse 14, it says, may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. और दूसरा कुरिन्थी अध्याय 13 उसका 14 में पौलुस इस प्रकार कहता है कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता. Let me tell you, I will never be able to do justice to this subject within 45 minutes of a English to Hindi teaching on this subject. मैं जानता हूं कि इस विषय के ऊपर ये जो 45 मिनट दिया गया है उस पर मैं ज्यादा कुछ मैं आपके सामने में सिखा नहीं पाऊंगा. We will need 3 months to study just what I am trying to communicate to you right now. इस विषय के ऊपर लगभग 3 महीना लगेगा हमें और गहराई में सीखने के So लिए. what you are getting is just a bullet point or a bird's eye view of the whole doctrine of God. जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो बहुत ही सारांश रूप में, बहुत ही कम शब्दों में हम बता रहे हैं. So the unified Trinity of God, जो त्रिएकता की जो तुलना है, we are trying to understand with our human mind. वो हम अपने मानवीय बुद्धि के अनुसार हमको सीखने की जरूरत है. And let me tell you, it is very complex. और वो बहुत ही कठिन है. Many theologians have tried to explain Trinity using many examples. बहुत ही बुद्धिजीवी जो लोग हैं जो धार्मिकता के विषय में सीखते हैं वो त्रिएकता के बारे में कई बातों को रखा है. In one of the Indian spice we have clove. हमारे जो भारतीय जो मसाला है उसमें लौंग है हमारे. And the clove has 3 leaves that makes up the one clove. ये जो लौंग है वो जब बनता है तो उसमें 3 प्रकार के छोटे छोटे पत्तियों होते हैं. It is clove in essence. ये लौंग तो है दिखने में, but it has 3 leaves. उसमें लेकिन 3 प्रकार के छोटे पत्तियां हैं. Some people try to explain the sun, the concept of sun. कई लोग त्रिएकता को सूर्य के साथ तुलना करते हैं. Sun as this is to help people understand. It's not that God is Suraj, but it is just trying to elaborate what the Trinity look like. कई लोग त्रिएकता को सूरज के साथ या सूर्य के साथ समानता नहीं लेकिन दिखाना चाहता या दर्शाना चाहता. The sun as the source along with its radiated light and heat. ये जो सूर्य है उसके जो विकिरणित प्रकाश है या उसको जो गर्मी या उजाला के साथ उसको समानता में लेकर आते हैं. To explain how Trinity looks like. ताकि त्रिएकता कैसा है वो हमारे सामने समझाए. Some people like to take an egg. कई लोग एक अंडे को हाथ में रख सिखाते हैं. The yolk and the white part, and then you got the shell that makes up. It's all egg, but it has 3 parts. ये जो अंडा जो हमारे घर में हम देखते हैं उसके 3 भाग हैं. उसके जो शेल होता है ऊपर की जो हिस्सा है उसके अंदर जो पीला है और जो सफेद है उसको. Or some people try to take the analogy of an apple to explain Trinity. या कई लोग सेब को दर्शाते हैं या समानता में लेकर आते हैं. It has the seed inside. उस सेब के अंदर बीज है. And then you got the flesh. और उसके अंदर जो खाने के जो पदार्थ हैं जो फल हैं. And then you got the skin. और उसके ऊपर उसका जो चमड़ी है. The whole fruit is called apple. हम कहते हैं उसको सेब, but it has 3 different parts. लेकिन उस फल में 3 प्रकार के अलग अलग चीज है. But none of these analogies that we with our human imagination try to explain Trinity can really do justice. लेकिन चाहे हम कितना भी हम उदाहरण आपके सामने रखें, इसका जो तुलना है त्रिएकता के साथ हम नहीं कर सकते हैं. Bible claims that in the co-equal divinity of Father Creator, यीशु जो उद्धार करता है उसको त्रिएकता के साथ तुलना की गई है. Father as the creator, पिता परमेश्वर सृष्टि करता है, Christ as the redeemer, यीशु मसीह जो उद्धारक है, and the Holy Spirit as the comforter. वो पवित्र आत्मा जो सांत्वना देता है. But it is best for us to accept the limited 3-dimensional
creatures such as that can never be fully comprehended in the mystery of an all-powerful God. लेकिन जैसे सीमित प्राणी एक सर्वशक्तिमान सभी को देखने वाला सभी को जानने वाला परमेश्वर को हम गहराई में हम नहीं जान सकते We will only fully know the magnitude and the powerful greatness of this God when we see him in eternity. परमेश्वर को हम गहराई में तब हम समझ सकते हैं जब हम उससे हम मिलेंगे हम God is a mystery. परमेश्वर एक रहस्य है He is an all-knowing God, ऐसा परमेश्वर जो सब चीजों को जानता है all-powerful God, सर्वशक्तिमान परमेश्वर all-seeing God, सब देखने वाला who परमेश्वर dwells in a heavenly dimension beyond our human comprehension. जो स्वर्गीय आयाम पर रहता है जो हमारे समझ से परे है So it is very important for us to really understand the nature and the character of God so that we can really love him, we can really follow him, we can really worship him. ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर को हम जाने ताकि हम उससे प्रेम करें उसके उपासना और आराधना हम करें Many people have gotten into the study of theology of understanding Trinity, understanding God. They have lost the relationship with God. बहुत से लोगों ने धर्मशास्त्र की उस पढ़ाई को बहुत से पढ़ लिया है और उस पढ़ाई के कारण परमेश्वर से दूर भी चला गया है They don't have a personal relationship with God. उनका व्यक्तित्व परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध नहीं है I call them armchair theologians. मैं उनको सरल रूप में ऐसे They sit on a chair writing theology, but they have no worship of God. They have no love for God. मैं ऐसे लोगों को ऐसा मैं तुलना करना चाहूंगा जो कुर्सी पर बैठते हैं सिर्फ लिखते रहते हैं So how can we truly know this God? तो हम परमेश्वर को वास्तविक तौर पर कैसे हम जान सकते हैं I'm reminded of a football coach at the beginning of every season. मेरे दिमाग में एक बात है एक फुटबॉल कोच के बारे में जो हमेशा खेल से पहले He will call all his players together every season. जो अपने खिलाड़ियों को इकट्ठा करता है खेल से पहले And he will have a football in his hand. और वो अपने हाथ में एक फुटबॉल को रखता है And he will tell the players, और वो अपने खिलाड़ियों से इस प्रकार कहता है guys, this is a football. दोस्तों ये एक फुटबॉल है It's as though the coach is as though these guys have never seen a football before. ये तो ऐसा है कि ये कोच है ये खिलाड़ियों को कहता है कि ये जो फुटबॉल आपने कभी देखा ही नहीं है करके But it is fascinating to me that the coach does this. लेकिन ये मेरे लिए एक अचंभा की बात है कि जो कोच है ऐसा करता है You got to know and be reminded that this is what we are playing. ये कोच इन खिलाड़ियों को ये दिखाना चाहता है और समझाना चाहता है कि ये जो खेल है ये फुटबॉल है और तुम्हें इस खेल में ही खेलना है Sometimes we get into the religiosity of churchianity or Christianity that we lost concept of who God is. कई बार हम आस्था में हम इतने डूब जाते हैं धार्मिकता के पीछे हम भागते हैं कि कई बार हम परमेश्वर को भूल जाते हैं We come to church, हम कलीसिया में आते हैं we look at the people, हम लोगों को हम देखते हैं or we may look at the symbols that are in the church, या हम उन बातों को परमेश्वर के मेज के जो रोटी दाखरस को हम देखते हैं and there is no focus on the awesomeness of God. लेकिन कई बार हम परमेश्वर की महिमा को हम करते हैं या अनुभव नहीं करते Hallelujah. Amen. But LifeBridge Church, here we are not about people. We are not here about sacreds or sacraments or the religion of Christianity, but it is about a personal, one-on-one, intimate relationship with your Creator. लाइफ ब्रिज कलीसिया ऐसे कलीसिया हैं जो सिर्फ आस्था और धार्मिकता के पीछे नहीं भाग रहा है लेकिन हम ऐसे कलीसिया हैं जो परमेश्वर की ओर निहारते हैं और सही सिद्धांतों की ओर हम अपने ध्यान को हम लगाते हैं Hallelujah. आमेन Don't look at people. लोगों की तरफ कृपया ना देखें You cannot see God. आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं You can only see God when you have a personal revelation of who God is. आप परमेश्वर को तब देख सकते हैं जब आपका स्वयं एक संबंध परमेश्वर के साथ है एक दर्शन,
when you have a revelation of God. आप परमेश्वर के प्रकाश को, दर्शन को आप तब देख सकते हैं. So in understanding Trinity, तो त्रिएकता को समझने के लिए we can fully know God, हम परमेश्वर को गहराई में जान सकते हैं, His attributes, उसके स्वभाव को जान सकते हैं, His nature, उसके गुण को हम जान सकते हैं, and His characteristics. उसके चरित्र को भी हम जान सकते हैं. That will make us a better worshipper of this living God. जिसके जरिए हम एक आराधक हम बन सकते हैं इस जीवित परमेश्वर की. Are you all with me this morning? आप सब लोग मेरे साथ हैं. Amen? आमेन. So knowing God as the Father, the first person of the Trinity. तो पिता परमेश्वर को हमें जानना है. Throughout the Bible, there are different ways that God portrays Himself us. पूरे बाइबल में परमेश्वर ने खुद को अलग अलग रीति से और तरीकों से दिखाया है. But one of the frequent reference to God in the Bible is given by Jesus Himself. लेकिन ज्यादातर परमेश्वर के बारे में अगर हमें देखना है तो यीशु मसीह खुद उसके सामने प्रस्ताव किया गया है. In the Gospel of John, यूहन्ना के सुसमाचार में chapter 17, verse 5. उसका 17 का 5 में, We're not going to read, but if you are taking notes, you can write those down. John 17, 5. यूहन्ना 17 5, Verse 11, उसका 11 भी, verse 24 to 25. और उसका 24 और 25 भी. Jesus describes God as the Father. यीशु ने परमेश्वर को पिता के रूप में संबोधित किया. Now, when Jesus uses God as the Father, it is not a new term that Jesus is using. जब यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर रहा है तो ये कोई नई शब्द नहीं है. Jesus is a person who knew the scriptures very well, the Old Testament very well. यीशु मसीह ऐसे एक परमेश्वर या ऐसे एक व्यक्ति हैं जो सब वचनों को या पुराना नियम नया नियम सब कुछ उसे जानता है. He is quoting God as the Father from Isaiah chapter 9 verse 6. यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित कहां से कर रहे हैं? यशायाह के पुस्तक 68 के 5 से संबोधित कर रहा है. On Psalms 68 verse 5. यशायाह 9 का 6 और भजन संहिता 68 का 5. Psalms 89 verse 26. भजन संहिता 89 उसका 26 में हम देखते हैं. These are all Old Testament verses that describes God as the Father, and that is what Jesus is teaching the disciples. When you pray to God, pray like this: Our Father, who art in heaven. और हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर को पिता करके संबोधित कर रहा है, ये सब जो वचन है वो पुराने नियम से हम देखते हैं. और यीशु मसीह अपने प्रार्थना में भी चेलों को सिखाते हैं, हमारे स्वर्ग के पिता तू जो आसमान में है करके. That is what Jesus wants us to know God as. और यही यीशु मसीह चाहता है कि हम परमेश्वर के बारे में भी हम जाने और सीखें, so that we have a personal relationship with God. ताकि हमारा एक व्यक्ति संबंध परमेश्वर के साथ बन जाए. Hallelujah. Amen. Isn't it so good this morning to know that my God is my heavenly Father? ये हमारे लिए कितना एक आशीष की बात है ये जानने के लिए कि मेरा जो पिता है वो मेरा स्वर्गीय पिता भी है करके. Hallelujah. Hallelujah. That is very comforting for me today. ये हमारे लिए एक सांत्वना की बात है That He is alive. कि वो आज भी जिंदा है. He loves me. वो मुझसे बहुत प्रेम करता He है. cares about me. वो मुझे संभालता है. You know, we all want to have an earthly father who will do everything for us. हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक भौतिक एक पिता हो या शारीरिक पिता हो जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है. Thank God if you have an amazing father. प्रभु को धन्यवाद हो कि अगर आपका पिताजी आज भी हैं. Some of you young people, you have no idea how grateful you need to be to your earthly fathers. यहाँ जो बैठे जवान जो बच्चे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर के प्रति आपके पिताओं के लिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है. I know fathers are the most neglected, thankless people. They never receive any thanks for anything they do. मैं जानता हूं कि ये जो पिताओं को कई बार प्रोत्साहित के शब्द बहुत कम देते हैं चाहे कुछ भी क्यों ना करें. But those of you who are children and you have dads who care for you, who love you, who do things for you, make sure you let them know how much you appreciate them.
मैं चाहूंगा और मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि अगर आपके पिता हैं तो उन्हें आप उनके जो कार्यों को जो करते हैं उन्हें आप प्रोत्साहित करें, उनके लिए आप आशीष का कारण That's the बनें। emotional sentiment we have about an earthly father. यही तो है भावुक रूप पर हम बहुत भावुक हो जाते हैं शारीरिक तौर पर हमारे पिता के लिए। Think about relationship with a heavenly father. जरा सोचिए हमारा संबंध स्वर्गीय पिता के साथ। That's the appreciation that Jesus is giving to God. यही जो चीज है, जो गहरी समझ है जो परमेश्वर यीशु मसीह स्वर्गीय पिता के बारे में कहना चाहता है। That picture of a father who speaks of a God who brings life into this world. ऐसे एक तस्वीर जो पिता इस दुनिया में जीवन लाता है And then he acts to nourish that life. और उसी बातों में वो कार्य भी करता है और हमें पोषण भी देता है। It speaks of a God who is the creator and sustainer of us all. ऐसा एक पिता जो हमारा निर्माता भी है और हमारा पालनहार भी है। It points to both his power and ability, but also the goodness and his care of his creation. साथ ही साथ परमेश्वर की शक्ति और क्षमता को भी दर्शाता है, उसकी अच्छाई और सृष्टि की देखभाल को इशारा भी करता है इस पिता परमेश्वर के बारे So में। my friends, our heavenly father is a God who is able. मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो स्वर्गीय पिता है वो सामर्थी है, क्षमता रखने वाला He परमेश्वर is है। able to turn your darkness into your light. वो ऐसा एक परमेश्वर है जो आपके अंधकार को रोशनी में बदल सकता है। Hallelujah. हालेलुया। He is able to turn your evil things in your life into something beautiful for God. वो ऐसे एक परमेश्वर है जो आपके जीवन में जो विपरीत परिस्थिति है उससे बदल सकता है। So let me move on quickly here. मैं आगे और बढ़ना चाहूंगा As जल्दी। an able God, परमेश्वर एक सामर्थी परमेश्वर है, He is eternal. वो सनातन है, He is self-existent. वो अतुलनीय शक्ति और अपने आप को सनातन परमेश्वर है। He is unchanging. वो कभी नहीं बदलेगा, He is all powerful. वो स्वयं अस्तित्व है और वो सर्वशक्तिमान He is परमेश्वर all है। knowing. परमेश्वर सर्वज्ञानी है And He is everywhere. और परमेश्वर हर जगह मौजूद है। Amen. हालेलुया। Our God is an able God. हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। Let the measure of your faith in God rise today. आपके विश्वास की जो क्षमता है वो परमेश्वर में बढ़ने पाए। Amen. आमेन। He is also a good God. वो परमेश्वर एक अच्छा एक परमेश्वर भी He's है। not just all powerful, वो एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही नहीं but the है, Bible says लेकिन वचन इस प्रकार कहता He है, is completely good in all His character. ऐसा लिखा है कि सभी चरित्र में वो अच्छा है। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। Because God loves the people He created. क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम रखता है He gives them a world to live in which was good. और ऐसे एक दुनिया दिया गया है जो अच्छा है। All the goodness of God everything that we enjoy in our life is the goodness of God flowing into our life. हमारे जीवन में जो भी हम अनुभव करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम से ही निकलती है। Hallelujah. आमेन, How many हालेलुया। of you see God as a good God? हम आप में से कितने लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। Amen. Amen. He sends the rain to the righteous and the wicked. वो धर्मी और जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए वो मैं बरसाता है। Amen. आमेन। He is able. वो सामर्थी है, He is good. वो अच्छा है। The Bible also says He is holy. और साथ ही साथ परमेश्वर वचन कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। In the book of Leviticus लेवी व्यवस्था and in the book of Revelation, और प्रकाशित वाक्य इस पुस्तक there is में a great emphasis on the holiness and the purity of God. परमेश्वर के शुद्धता और पवित्रता और धार्मिकता के बारे में बहुत ही गहराई में लिखा गया है। When you say God is holy, आप जब कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, let me ask you this question. मैं एक प्रश्न आपके सामने पूछना चाहूंगा, Are you holy? क्या आप पवित्र हैं? We are not. हम नहीं हैं। There is no way we can claim holiness हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम पवित्र हैं, because we are sinful by nature. क्योंकि हम शारीरिक तौर पर हम पापी हैं। There are sin elements in us. कई प्रकार के पाप हैं। And so when we know that God is holy, और हम जब जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, He's pure, कि वो शुद्ध है, it sets Him apart. It makes Him something that is uniquely
different for a greater purpose. और इससे परमेश्वर अलग है जिससे वो कई महान कार्यों को करता है। What is that? वो क्या है? What is the greater purpose of His holiness? उस परमेश्वर की पवित्रता का उद्देश्य क्या है? Let me tell you, church, मैं कलीसिया में आपके सामने बोलना चाहूंगा, it is worship. वो और कुछ नहीं, वो आराधना है। It is worship. वो आराधना है। That's because He is set apart. क्योंकि उस परमेश्वर अलग है। There is nobody like Him. उसके समान कोई नहीं है। No one as holy as God is. उसके समान, उसके तुल्य पवित्र कोई नहीं And है। that's why Psalmist says, enter into His courts with thanksgiving and praise on your lips. परमेश्वर भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि आओ हम धन्यवाद के साथ उसके भवन में प्रवेश करें। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। So when you come into the presence of God, तो हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम जब आते हैं, picture the holiness of God. इस तस्वीर को समझ लीजिए कि परमेश्वर पवित्र है। It will take you into a whole new level of worship. उसके जरिए आप एक अगले स्तर पर आराधना में आप चले जाएंगे। आमेन। God is also righteous. साथ ही साथ परमेश्वर धर्मी है। He is righteousness. He is righteous in harmony with every standard that God has set. परमेश्वर के मापदंडों में परमेश्वर अनुरूप जीना चाहता है हमारे साथ। What is God's standard for living? परमेश्वर के मापदंड क्या है? We have the 10 commandments हमारे सामने 10 आज्ञाएं हैं। in Exodus chapter 20. निर्गमन के पुस्तक 20 में हम देख सकते हैं। God is able to give us those standard of excellence परमेश्वर हमारे सामने उन मापदंडों को रखना चाहता, देना चाहता है, because He is righteous. क्योंकि वो धर्मी है। As a loving father, एक अच्छा एक पिता बनकर He will not lie. वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। He will not murder. वो कभी हत्या नहीं करेगा। He will not steal from his family. वो अपने परिवार से कभी चोरी नहीं A करेगा। loving father also protect his family when others try to kill. एक पिता जो अपने परिवार से प्रेम रखता है, वो अपने परिवार को सुरक्षा प्रदान करेगा जब दूसरे लोग उसके ऊपर आक्रमण करेंगे। Some of you may have had fathers who failed to care and protect you. ऐसा हो सकता है कि आपके जो यहाँ के जो भौतिक जो पिता हैं, जो शारीरिक पिता हैं, कई बार आपको देखभाल करने में नाकाम थे। But God is continuously demonstrating His righteousness to us by loving us, by providing for us, by caring for us. लेकिन लगातार परमेश्वर अपने धर्मी कार्यों के माध्यम से वह अपने प्रेम को हमारे सामने प्रदर्शित करता है। Hallelujah. आमेन, हालेलुया। God is also faithful. साथ ही साथ परमेश्वर विश्वास योग्य वफादार है। What is faithfulness means? विश्वास योग्यता का मतलब क्या है? Absolute trustworthiness, परमेश्वर पर भरोसामंद रखना, reliable, विश्वसनीय, loyal, वो वफादार रहे, true to His word. और वो अपने वचन के और वो सच्चा भी है। A father who is not faithful to his children, एक पिता जो अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति जो वफादार नहीं है, or to her husband, और or a husband who is not faithful to his wife, या एक पति जो अपने पत्नी के ऊपर वफादार नहीं है, is not demonstrating true love. वो जो व्यक्ति है अपने पूर्ण प्रेम को व्यक्त नहीं कर रहा है। But God is faithful because His love never लेकिन changes. परमेश्वर वफादार है क्योंकि उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। Hallelujah. आमेन। That is our Father God. वो ही हमारा परमेश्वर। Amen. आमेन। Maybe we should stop there right there today, मैं चाहूंगा कि अपने शब्दों को मैं विराम दूं, because there's no more time for us to go any further. हमारे सामने समय की पाबंदी है। But if only you can go away from this place today जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, with a greater understanding of knowing God as our Father, मैं चाहूंगा कि आप परमेश्वर को गहराई में आप अनुभव करें। how able, how powerful He is. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो क्षमता रखने वाला परमेश्वर। What a great God we serve. ऐसे एक महान परमेश्वर की आराधना हम कर रहे You हैं। will never fail to serve Him. परमेश्वर की सेवा करने में आप कभी भी नाकाम नहीं You will रहेंगे। do anything for God. चाहे जितना भी हो सके आप जरूर आप परमेश्वर के करेंगे। Amen. आमेन। You will love God with all your heart. आप अपने पूरे दिल से आप परमेश्वर से प्रेम The रखें। Bible says, love the Lord your God with all your heart. अब वचन में इस प्रकार क्या कहता है कि परमेश्वर को पूरे दिल तन मन से प्रेम करें। The Lord willing, we will come back to understanding and knowing God as the Son and knowing God as the Holy Spirit. परमेश्वर के the आगमन में Comforter. देरी है तो हम वापिस आएंगे और परमेश्वर जो पुत्र हैं उसके बारे में भी हम गहराई में हम सीखेंगे। Don't miss next Sunday.
अगले रविवार कृपया आप मिस ना करें, because we are continuing this series. क्योंकि हम इस श्रृंखला को हम जारी And रखेंगे we're going to learn and really unpack deeper into this loving God rescuing us and making us part of His kingdom. और इस प्रेमी परमेश्वर को और गहरा में अगले श्रृंखलाओं में हम जरूर हम सीखें। Amen? आमीन। How many of you want to say to God today, आप में से कितने लोग ये कहना चाहता I है, want to love you more. मैं आपसे और प्रेम करना चाहता हूँ, I want to have a deeper revelation of this God. परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि और गहराई में आपके साथ में संबंध में It बना doesn't matter how many years you've been a Christian. ये मायने नहीं रखता कि आप कितने साल से मसीह को जानते हैं, There is much more that we can know about God. इससे ज्यादा और भी हम परमेश्वर को हम जान सकते हैं।